ایک جنگل میں ٹونی طوطا رہا کرتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک سونی چڑیا رہا کرتی تھی۔ ٹونی طوطے کو سونی چڑیا سے محبت ہو گئی اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن سونی چڑیا میں ایک خامی تھی۔ جب وہ بولتی تھی تو وہ ہکلانا شروع کر دیتی تھی۔ سونی چڑیا نے ٹونی کو کافی سمجھایا کہ وہ اس کے قابل نہیں اور اس کی ماں اسے قبول نہیں کرے گی، لیکن ٹونی طوطے پر محبت کی دھن سوار تھی اور اس نے چوری چپکے اسے شادی کر لی۔ ٹونی طوطے نے اپنی ماں بنٹی کبوتر سے بات کی اور اسے سونی چڑیا کے گھر لے کر گیا۔ بنٹی کبوتر نے جب سونی چڑیا سے اس کا نام پوچھا تو سونی چڑیا نے اسے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ میرا نام سونی ہے۔ یہ سن کر بنٹی کبوتر کو ہنسی آ گئی اور اس نے اپنے بیٹے ٹونی سے کہا، ہا ہا ہا، ارے بیٹا، تم نے یہ لڑکی پسند کی ہے، اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا۔ ہاں ماں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بیٹا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ جس کو صحیح طرح سے بولنا نہیں آتا تم اس کو اپنی بیوی بناؤ گے؟ ہاں ماں، میں نہیں جانتا، میں اسی سے شادی کروں گا، لیکن میں تمہاری اسے شادی ہرگز نہیں کرواؤں گی۔ بنٹی کبوتر اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کافی دنوں بعد ٹونی طوطا سونی چڑیا سے کورٹ میرج کر لیتا ہے اور اس کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ جب بنٹی کبوتر سونی چڑیا کو اپنے سامنے دیکھتی ہے اور غصے کے مارے اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ ارے بیٹا، تم نے اس سے شادی کر لی جس کو بولنا تک نہیں آتا؟ ایک لفظ بولتے ہوئے اس کو 15 منٹ لگتے ہیں اور تم اٹھا کر لے آئے ہو اسے بیوی بنا کے۔ ہاں ماں، یہ میری بیوی ہے اور یہ میری پسند ہے، آپ کو اسے قبول کرنا پڑے گا۔ بنٹی کبوتر کو سونی چڑیا کو آخر کار قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہر روز سونی چڑیا کو اس کے ہکلانے پر تانے دیا کرتی تھی۔ ایک دن سونی چڑیا کچن میں کھانا پکا رہی تھی اور بنٹی کبوتر اس کے پاس آئی۔ ارے بہو، آج کھانے میں کیا پکا رہی ہو؟ جی وہ میں ارے بول بھی چکو، 10 منٹ ہو گئے ہیں، ایک لفظ نہیں بولا جا رہا تم سے۔ وہ میں آلو گوشت بنا رہی ہوں۔ آئے ہائے، جو بھی پکانا ہے پکا لو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں گھنٹوں کھڑی ہو کر تمہاری باتیں سنوں۔ ایک دن سونی چڑیا بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور بنٹی کبوتر کا فون اور اتنے میں فون بجنے لگتا ہے، لیکن سونی چڑیا فون نہیں اٹھاتی۔ تھوڑی دیر بعد جب بنٹی کبوتر وہاں پر آتی ہے تو سونی چڑیا اس کو فون کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ ماں جی، آپ کا فون آ رہا تھا۔ کس کا فون تھا اور تم نے کہیں اٹھا تو نہیں لیا؟ نہیں، اور آئندہ بھی میرا فون مت اٹھانا۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میری بہو ہکلاتی ہے۔ میری اپنی دوستوں کے سامنے کوئی عزت ہے، اور اگر ان کو پتا چل گیا کہ تم ہکلاتی ہو تو وہ میرا کتنا مذاق اڑائیں گی۔ ماں جی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور مجھے تو اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر سے 2 گھنٹے کھڑے ہو کر میں تمہاری بات سنوں۔ سونی چڑیا یہ سب سن کر رونے لگتی ہے۔ ایک دن بنٹی کبوتر سونی چڑیا کے پاس آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میری کچھ سہیلیاں کھانے پر آ رہی ہیں اور کھانے میں کچھ اچھا سا بنا لینا۔ جب سارا کھانا بن جاتا ہے تو بنٹی کبوتر سونی چڑیا سے کہتی ہے، دیکھو کھانا تو تم نے بنا لیا، لیکن جب میری سہیلیاں آئیں تو تم ان کے سامنے ہرگز مت آنا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ان کے سامنے ایک لفظ بھی بولو۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں نہیں آؤں گی۔ اور تھوڑی دیر بعد جب اس کی سہیلیاں آتی ہیں تو اسے اس کی بہو کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ بنٹی کبوتر ان کو بتاتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، اور جب ٹونی طوطا شام کو واپس گھر آتا ہے تو وہ اس کے سامنے رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، یہ بیماری تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹونی طوطا اس کو کافی سمجھاتا ہے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا اور ایک دن بنٹی کبوتر کو خون کی الٹی آئی۔ وہ کافی پریشان ہو گئی۔ اس کا بیٹا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب وہ دونوں ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ ان کو کینسر ہے۔ یہ خبر سنتے ہی بنٹی کبوتر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ روتے ہوئے واپس گھر آتی ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سونی چڑیا کا مذاق اڑاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ سونی چڑیا کے پاس آتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، یہ سب تمہارا دل دکھانے کی سزا ہے۔ میں بھول گئی تھی، نہ میں تمہارا دل دکھاتی اور نہ آج مجھے یہ بیماری ہوتی۔ ماں پلیز ایسا نہیں کریں، میں نے کبھی بھی آپ کی باتوں کا برا نہیں مانا اور آپ بالکل میری ماں جیسی ہیں۔ سونی چڑیا بنٹی کبوتر کو معاف کر دیتی ہے اور اس کا پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھنے لگتی ہے۔ ایک جنگل میں بنٹی کبوتر اپنی بیٹی سونی چڑیا کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بنٹی کبوتر نے سونی کے باپ کے گزر جانے کے بعد بہت محنت کی
और वो बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी और अपना पेट पाल रही थी। वो सारा दिन लोगों के कपड़े सीती और अपनी गुजर बसर करती थी। एक दिन वो जंगल के तमाम परिंदों के पास गई और उनको अपने कपड़े सीने के हुनर के बारे में बताया। वो पिंकी चिड़िया के पास गई और उससे कहा, अरे बहन, मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुमने अगर अपने और अपने बच्चों के कपड़े वगैरह सिलवाने हैं तो मुझसे सिलवा लेना। मैं इंतहाई कम दाम में तुम्हें कपड़े सी दूंगी। ठीक है, मुझे कुछ कपड़े सिलवाने हैं, वो मैं आपको कल दे जाऊंगी, लेकिन ख्याल रहे कि कीमत कम होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए मैं डिस्काउंट दूंगी। इस तरह से नीली चिड़िया कपड़े सिलवाने पर राजी हो जाती है। अगले रोज बंटी कबूतर पिंकी कबूतर के पास जाती है और उससे कपड़े सिलवाने का कहती है। पिंकी कबूतर भी अपने कपड़े सिलवाने पर राजी हो जाती है। इस तरह वो बारी बारी जंगल के तमाम परिंदों के पास जाती है और वो सब उससे कपड़े सिलवाने के लिए राजी हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके ग्राहक बढ़ने लगे और उसकी आमदन में इजाफा होने लगा। एक दिन सोनी चिड़िया ने बंटी कबूतर से कहा, अरे अम्मा, अब तो तुम्हारी काफी अच्छी आमदन होने लगी है, मुझे इस घर में एसी लगवा के दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो, ये एसी वैसी तो बड़े लोग लगवाते हैं। मेरी आमदन अच्छी जरूर हुई है, लेकिन इतनी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए एसी लगवा सकूं। माँ, क्या हो गया है? मुझे नहीं पता, मेरी सब दोस्तों के घर में एसी हैं और तुम देख नहीं रही हो कि कितनी गर्मी है। गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया। अरे बेटा, तुम्हारी दोस्तें तो बड़े घर की हैं। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एसी लगवा सकूं। सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा जिद करती है, लेकिन बंटी कबूतर उसको टाल देती है। एक दिन बंटी कबूतर बाजार जा रही थी तो उसे रास्ते में तरबूज का बना हुआ घर नजर आया, जो कि कालू कव्वे का था। अरे कव्वे मियाँ, तुम्हारा घर तो बहुत ही प्यारा है। अरे हाँ, ये सिर्फ प्यारा ही नहीं है बल्कि बहुत ठंडा है। कुछ दिनों से मेरी बेटी मुसलसल जिद किए जा रही थी कि गर्मी बहुत है, मुझे एसी लगवा के दो। अब मेरी इतनी औकात तो नहीं कि मैं एसी लगवा सकूं, बस इसीलिए मैं एक ठंडा घर खरीद लाया हूं और अब मेरी बेटी बहुत खुश है। अरे क्या सच? तुम्हारा घर वाकई बहुत ठंडा है। अरे हाँ, तुम खुद अंदर आके देखो जरा, ये कितना ठंडा है। बंटी कबूतर उसके घर के अंदर चली जाती है और जब वो घर में दाखिल होती है तो उसका घर वाकई किसी एसी से कम नहीं था। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और कालू कव्वे से उस घर के बारे में दरियाफ्त करती है कि उसने कैसे बनाया। इसके बाद वो भी तरबूज खरीद लाती है और उसका एक बहुत ही प्यारा सा घर बनवा लेती है। अगले रोज वो अपनी बेटी सोनी चिड़िया से कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटी, आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। तुम्हारे लिए मैंने एक नया घर बनाया है जिसमें एसी लगा हुआ है। अरे माँ, क्या आप सच कह रही हैं? अरे हाँ, चलो मेरे साथ। बंटी कबूतर उसको लेकर उस नए घर में आती है। सोनी चिड़िया जब तरबूज का बना हुआ घर देखती है तो वो रोने लगती है। अरे माँ, आप मेरे साथ कैसा मजाक कर रही हैं? आपने तो मुझे कहा था कि आपने एसी लगवाया है। ये गंदा सा तरबूज का बना हुआ घर, क्या अब हम इसमें रहेंगे? देखो तो सही जरा, अंदर एसी लगा हुआ है। वो सोनी चिड़िया को लेकर घर के अंदर दाखिल होती है तो वो घर काफी ठंडा होता है। माँ, इसमें एसी तो कहीं नहीं लगा हुआ, लेकिन ये बहुत ठंडा है। अरे बेटा, कालू कव्वे ने भी ऐसा ही घर बनाया हुआ है और ये बहुत ठंडा है और इसमें एसी लगवाने की जरूरत नहीं। माँ, तुम वाकई सच कह रही हो, ये तो बहुत ही ठंडा है, मुझे तो गर्मी भी नहीं लग रही। इस तरह कालू कव्वे की देखे देखी सब परिंदे तरबूज से बने हुए घर खरीद लाते हैं और इस तरह से सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में सोनी चिड़िया अपने माँ बाप बंटी कबूतर और टोनी कबूतर के साथ रहा करती थी। सोनी चिड़िया के माँ बाप बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर किया करते थे। कुछ ही दिनों में सोनी चिड़िया की शादी होने वाली थी और बंटी कबूतर ने बड़ी मुश्किल से लोगों के कपड़े सीकर उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ रखे थे। माँ, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैंने अपना ब्राइडल मेकअप एक महंगे ब्यूटी पार्लर से करवाना है। अरे बेटा, पागल हो गई हो क्या? 1 लाख रुपए? इसमें तो खाने का इंतजाम हो जाएगा और तुम अपनी लेपा पोती के लिए मुझसे 1 लाख रुपए मांग रही हो। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी जिंदगी में बस एक बार ही होती है और उस पे भी मैं खर्चा ना करूं। अरे बेटा, मेरा सर न खा, ये पकड़ 5,000 रुपए और ये जो मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर है ना, इसमें जाके अपना मेकअप करवा लेना। सारा दिन बस दिमाग की दही बनाए रखती हो। सोनी चिड़िया को जंगल के सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाने का भूत सर पर सवार था। एक दिन वो मेकअप का पैकेज पता करने के लिए ब्यूटी पार्लर गई। मैं आपसे मेकअप करवाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे पैकेज बताएंगी?
अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, हम यहाँ पर 1 लाख का ब्राइडल मेकअप करते हैं। उसमें आपका मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर सब कुछ शामिल होगा, लेकिन उसके लिए आपको हमें एडवांस पेमेंट करनी होगी। 1 लाख रुपए? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। अरे आपका मेकअप भी तो उतना ही आला होगा, और जब तुम्हारा मियाँ तुम्हें इस मेकअप में देखेगा तो तुम्हारे मियाँ की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे वाह, क्या आप सच कह रही है? अरे हाँ हाँ, बड़े बड़े अमीर लोग हमारे यहाँ से मेकअप करवाते हैं और यहाँ से खुश होकर जाते हैं। सोनी चिड़िया पहले तो बहुत खुश हुई, जब उसने 1 लाख के बारे में सोचा तो वो उदास अपने घर वापस आई। उसकी माँ किचन में खड़ी खाना पका रही थी। सोनी चिड़िया ने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया, लेकिन सोनी चिड़िया पर तो महंगे मेकअप का भूत सवार था। उसने अपने बाप से बात करने की ठान ली। शाम को जब टोनी कबूतर थका हारा अपने घर वापस आया तो सोनी चिड़िया उसके पास गई और उससे कहा, पापा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अरे क्या कह रही हो बेटी, 1 लाख रुपए का तुम क्या करोगी? पापा वो मैंने ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाना है। अरे मेरी प्यारी बेटी, ये क्या बात कर रही है? 1 लाख रुपए का तुम सिर्फ मेकअप करवाओगी? हाँ पापा, बस मुझे नहीं पता, मैंने महंगे ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाना है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, ये 10,000 ले लो और जाकर मेकअप करवा लेना। पापा 10,000 में क्या होगा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अरे बेटा, तुम तो जानती हो हमारी गुजर बसर कैसे होती है, और फिर भी तुम 1 लाख रुपए का कह रही हो। हमारी बेटा इतनी औकात नहीं, इंसान को अपनी चादर के मुताबिक ही पाँव फैलाने चाहिए। बाप की बातें सुनकर सोनी चिड़िया वहाँ से मायूस लौट जाती है। रात को सोनी चिड़िया अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो सारी रात यही सोचती रहती है कि आखिर पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। उसके नजदीक शादी सिर्फ जिंदगी में एक बार होनी होती है, और उस पर भी इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार ना हो तो क्या फायदा। अगले दिन बंटी कबूतर सोनी चिड़िया के जहेज के लिए सोने का सेट निकाल कर बैठी हुई थी। उसने सोनी चिड़िया को अपने पास बुलाया और वो सेट दिखाया। अरे बेटा, ये देखो, ये तुम्हारी दादी का सेट है और ये मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा हुआ था। सोने का सेट देखते ही सोनी चिड़िया की आंखें चमक उठी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बंटी कबूतर ने सेट दिखाने के बाद उसको इंतहाई हिफाजत के साथ अलमारी में रख दिया। सोनी चिड़िया भी ये सब कुछ देख रही थी। अगले दिन जब बंटी कबूतर काम से बाहर गई हुई थी और सोनी चिड़िया ने मौका पाकर जल्दी से अलमारी खोली और वो सेट निकाल लिया, और फिर अगले ही रोज वो सेट को बेचने के लिए सुनार चिड़े के पास चली गई। अंकल, मैं ये सेट बेचना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इसकी मालियत बता सकते हैं? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी। सुनार चिड़ा वजन करने के बाद सोनी चिड़िया को उसकी मालियत 1,25,000 बताता है। ये कीमत सुनकर सोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपना सेट बेचकर वापस घर आ जाती है, और फिर वो इस जंगल के सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में अपनी बुकिंग करवा लेती है। उसकी माँ बंटी कबूतर बहुत सीधी सादी थी। उसको इस ब्यूटी पार्लर के बारे में कोई खबर नहीं थी। शादी वाले रोज जब सोनी चिड़िया मेकअप करवाने के लिए पार्लर पहुंची तो ब्यूटी पार्लर और सारा बाजार कोरोना की वजह से बंद था। सोनी चिड़िया ने जल्दी से उस पार्लर वाली को फोन मिलाया तो उसका फोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। जबकि इधर घर में बंटी कबूतर ने अलमारी खोली तो वहाँ पर सेट ना पाकर वो बहुत परेशान हो गई। जब सोनी चिड़िया मायूस होकर वापस घर लौटी तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने ये सुनते ही रोना शुरू कर दिया। अरे बेटा, मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और वो जो सेट मैंने तुम्हारे लिए बनाया था तुमने उसे ही बेच डाला। माँ मुझे माफ कर दे, मेरी बेवकूफी की वजह से वो सेट भी हाथ से चला गया और मेरा मेकअप भी नहीं हुआ। अरे बेटा, तुमने पूरे के पूरे 1 लाख डबो दिया, मैं तुम्हारे ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। माँ मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। सोनी चिड़िया ने पैसे भी अपने हाथ से गवाए और फिर अपना मेकअप भी खुद घर पर कर लिया।